अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर नजूमी पाकिस्तान से, पंजाब सांगला हिल। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं जो कि इल्म नजूम के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनाई हैं। तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको इसमें आज़म के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें आज़म जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे पीर, बहुत सारे अलमा इस बात की तलाश में हैं कि हमें इसमें आज़म मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए। इसमें आज़म क्या है? अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान, मेरी बात के ऊपर ना थोड़ा गौर करना कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसमें कोई फ़िरके की बात नहीं, कोई मुसलमानी की बात नहीं। अल्लाह फरमाता है ज़मीन और आसमान और जो चीज़ें इनके दरमियान में हैं, सब की सब ही अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। यही नहीं बल्कि जानदार और बेजानदार सब के सब ही अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, मगर तुम लोग इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अब ज़रा इस कलाम इलाही पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने किसी कौम को या किसी मज़हब को मुखातब होकर नहीं कहा। जो चीज़ यानी पूरी दुनिया, इंसान, चरिंद परिंद और बेजानदार भी, पत्थर और चीज़ें, फिर अल्लाह फरमाता है भाई तुम इस जो तस्बीह हो रही है, तुम इस तस्बीह को जानते नहीं, वाकिफ़ नहीं। तो जब अल्लाह कह रहा है कि तुम नहीं जान सकते, तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हज़रत सुल्तान बहू फरमाते हैं कि मुर्शद जेड़ा सबक पढ़ाया, मुर्शद जेड़ा सबक पढ़ाया, बिन पढ़िया पिया पढ़ीवे, कन्ना विच लै लईए उंगलां ते बिन सुनिया पिया सणीवे। असल च मेरे दोस्तों, बात यह है कि ये जो तस्बीह हो रही है, करनी नहीं पड़ती, हो रही है, इसे ही इसमें आज़म कहते हैं। वो हो कैसे रही है, बस इस चीज़ का पता नहीं है हमें। इस चीज़ के ऊपर अल्लाह ने एक पर्दा डाला हुआ है। तो आज मैं इस पर्दे को उठाने वाला हूँ कि वो कौन सी तस्बीह है और कैसे होती है। यानी जो तस्बीह अल्लाह कहता है वो तस्बीह कहता हो रही है, तो जो हो रही है उसे हम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्तों,
اس کے لیے نبی پاک نے پھر فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ نفس کیا ہے؟ نفس فارسی کا ایک لفظ ہے جو سانس کو کہتے ہیں، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر سانس لینے والی چیز کو موت آئے گی، یعنی سانس۔ نفس کسے بولتے ہیں؟ سانس کو۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے اپنے سانس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا۔ پر سانس کو پہچان نہیں لوگوں کو۔ آج میں یہی پہچان کراؤں گا آپ کو۔ بس آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، یعنی ایسی بات کوئی بندہ کسی کو نہیں بتاتا۔ بہت بہت پیر، بہت بہت علماء اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نہیں بتاتا، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بیعت کرو۔ مرید ہوتے ہیں تو پھر قسمیں ڈالتے ہیں، ہیلپ اپنا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا کر یہ عہد لیتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں۔ تو آج دوستو میں آپ کو یہ بالکل میرا مطلب ایسے پردے سے، آج ایک ایسے راج سے میں اپنا پردہ اٹھانے والا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو سب سے پہلے سانس کو پہچاننے کے لیے آپ نے یہ دونوں انگلیاں جو ہیں شہادت والی، ان دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈال لینا اور دبانا ہے کہ باہر کی آواز نہ سنی جائے۔ انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر پھر یہ جو انگوٹھے ہیں انگوٹھوں سے ناک کو بھی بند کرنا ہے۔ ناک کو بند کر کے سر کو تھوڑا نیچے کر لینا ہے اور اپنا منہ کھول لینا ہے، اور سانس جو ہے یہ منہ کے تھرو ہی لینا ہے۔ مگر یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اپنے اوپر ایک کپڑا اوڑھ لینا ہے۔ اگر موسم سردی کا ہو تو سردی والا کپڑا لے لیں، اگر گرمی کا ہو تو گرمی والا لے لیں۔ اب آپ نے منہ نیچے کر کے سر کو، تو منہ کے تھرو آپ نے سانس لینا ہے اور غور کرنا ہے کہ سانس سے کیا آواز آ رہی ہے۔ پڑھنا نہیں، غور کرنا ہے۔ تو جب آپ غور کریں گے تو سانس نیچے کو جائے گا تو اس سے آواز آئے گی اللہ۔ جب سانس باہر نکلے گا تو آواز آئے گی ہو۔ اب یعنی اللہ شاہ راگ کے قریب، اور اللہ دل میں۔ کون سے دل میں؟ نبی پاک کا فرمان ہے کہ انسان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ عمر کو فرمایا تھا، کیا عمر حقیقی دل کو ڈھونڈنا کوئی آسان بات نہیں۔ میرے بھائی، آپ سرکار نے فرمایا حقیقی دل نہ دائیں ہوتا ہے نہ بائیں ہوتا ہے، نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ جو دل ہے ہمارا، یہ تو ایک مجازی دل ہے۔ یہ تو صرف ایک ہمارے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے، پمپ کرتا ہے۔ اور اس سائنسی دور میں اگر کسی بندے کا ڈاکٹر دل نکال کر ایک ڈپلیکیٹ دل لگا دیتے ہیں، پلاسٹک کا بمائے بیٹری، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ اللہ جو دل میں رہتا ہے وہ ڈپلیکیٹ جو دل سے نکل گیا ہے اس دل سے نکل جائے گا یا وہ ڈپلیکیٹ دل میں آ جائے گا؟
आई ना बात समझ में? नहीं, वो दिल ही और है, वो दिल और है जिस दिल में अल्लाह रहता है। उस दिल को ढूंढने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जब आपको यानी अपने अंदर जाने का किसी ने बताया ही नहीं आज तक कि अपने अंदर पहले जाओगे, उस दिल को तलाश करोगे तो फिर ही अल्लाह मिलेगा ना। तो जब आप अपने अंदर जाने का कोई कायदा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो फिर आप अपने दिल को तलाश नहीं कर सकते। यानी अल्लाह जो शाह राह के करीब रहता है, तो फिर दूर जाने की क्या ज़रूरत है? इसको तलाश करना है। इसको तलाश करने के लिए ये जो इसमें आज़म यानी आपने अपने सांस के थ्रू अपने अंदर जाना है। यानी वो जो अल्लाह हू की आवाज़ आ रही है, आपने ऐसे मस्त हो जाना है कि उस सांस के थ्रू अंदर जाना है, अपने ऐसे गुम सुम हो जाना है कि बस कुछ ना रहे, अल्लाह रहे, बस आप ना रहे। तो एक दिन बहुत जल्दी आ जाएगा कि आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जब आप अपने अंदर गए हैं तो फिर आपको अपना वजूद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप नहीं होंगे, अल्लाह ही रह जाएगा। इसी तरह आपकी जितनी जद्दोजहद है, आप कितनी देर में अपने अंदर जा सकते हैं, आप अपने आप को फना कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। मरने से पहले मरना है, मरने से पहले मरना है, तो फिर खुदा मिलेगा। तो यही तरीका है। तो इस तरीके से आप वली बन सकते हैं, कुतुब बन सकते हैं, अब्दाल बन सकते हैं। यानी ये वो तरीका है जिस तरीके से आप इसमें आज़म के थ्रू अपने अंदर जाएंगे। और उसके बाद यूं यूं आपकी परखसट होती जाएगी, तो फिर उठते बैठते लेटे कोई काम करते, बस आपकी दिमाग की वो सुई जो है वो बस इधर होनी चाहिए, अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू। यानी बस ये इसमें आज़म, यानी आपका कल्ब जारी हो जाएगा। और जब कल्ब जारी हो जाएगा तो फिर इसमें क्या नज़ारे मिलते हैं आपको, क्या दिखाया जाता है आपको। हत्ता कि जब आप इसके ऊपर पूरी परखसट और पूरी तवज्जो देंगे, तो फिर दिल में या ज़हन में आप सोचेंगे, ख्याल करेंगे कि ये ऐसा हो जाए, तो फिर आप नहीं, वो जो अंदर है वो ऐसा कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए किसी और तजर्बे की ज़रूरत नहीं है कि इसको मैं करूं तो मैं को मोहब्बत के मामलात या कोई ऐसे वैसे या ऐसे ऐसे। यानी ये एक कल्ब सुकून और अल्लाह पाक की ज़ात के साथ कुंडा लगाने के लिए इसमें आज़म है। तो इसको आप करो, और करने के बाद क्या मज़े आते हैं, क्या नज़ारे आते हैं। आखिरत भी सौर जाएगी, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। तो ये करे। मेरी तरफ से जितने भी बहन भाई हैं सबको इजाज़त है। ये इसको बोलते हैं इसमें आज़म। बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारी आयतों में यानी लिखा हुआ है, जैसे कि कलमा में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप सरकार ने फरमाया इसी में है इसमें आज़म। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
آپ سرکار نے فرمایا اسی میں ہے اسم اعظم، یعنی بہت ساری آیتیں یا بہت سارے کلمات پڑھ کر سرکار نے بتا دیا ہے کہ اسی میں ہے، ڈھونڈ لو۔ تو اب ڈھونڈنے سے کہاں ملتا ہے، کوئی رہبر مل جائے جو بتانے والا ہو۔ تو دوستو یہ کرو، پڑھو، اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کرو، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔